कैसे हो सब? ऑल आर गुड. स्टार्ट करेंगे. एंड if I'm not wrong, in the previous lecture we are done with the 3 clauses, right, out of 21. So first of all, quick wrap करेंगे. What is the name of the topic we are doing? Caro 2020. What is the date of notification? 25th February 2020. What was the original year when it was required to be applicable? 1920, but was deferred by 2 years. Now the main year when it is applicable is 21, 22. Caro is applicable to whom? All the companies, including foreign companies, except Section 8, banking, insurance, OPC, small and private limited company. But such private limited companies which are satisfying for, right? What are the 4 conditions? Neither a holding, so neither a holding nor a subsidiary of a public company. Total paid up share capital plus free reserve shall not exceed, and borrowing shall not be exceeding 1 crore. Turnover including discontinued operation, turnover shall not be exceeding 10 crore. अच्छा, जब अपन total paid up share capital में what are the things we have to add? We have to add ESC, PSC minus calls in areas, and which share application money we have to reduce, whose allotment is pending. फिर हमने free reserves में सारे reserves add कर लिए थे. But if there is a debit balance of P&L, what we are going to do? We are going to first adjust it with the reserves. If there is still pending balance, then we will adjust it with the capital. और third में outstanding borrowings में all the borrowings will be added. But when it comes to the overdraft and if it is any security given, do we have to take the net or gross? And turnover के केस में continuing operation as well as discontinuing operation. What are the things you need to consider if any excise or GST, if any custom or GST is given inside the invoice value, you have to reduce it. If it is given separately, you have to ignore it. And trade discount you have to reduce, and sales return you have to reduce. I think we did one question as well. ठीक है? So फिर हमने 21 clauses start करे थे. In the 21 clauses, my clause number 1 was relating to what? Plant, property and equipment. उसमें मेरे 5. अच्छा, is this audit a normal audit or propriety? What does that mean? Less examination or deeper examination? Deeper. So यहाँ पे हमने question number 1 किया था. That was plant, property and equipment. In that question, we asked really the 5 areas. Area number 1 was relating to records. Second was relating to title. Third was relating to physical verification. Fourth was relating to Benami properties. And the fifth one was relating to revaluation. अगर revaluation 10% से ज्यादा है तो अपने को क्या चेक करना है? Revaluation report and the amount of disclosure. Am I correct? And in case of physical verification, what do we ask? कि whether you do the physical verification at regular intervals or not. और when we are talking about the records, अपने को quantity details चाहिए, location details चाहिए and details of individual. ये सारे डिटेल्स चाहिए. उसके बाद इन्वेंट्री के केस में आई हैव 2 क्वेश्चंस टू आस्क. क्वेश्चन नंबर 1, डू यू डू द फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल? इफ यस, टेल मी द प्रोसीजर ऑफ योर फिजिकल वेरिफिकेशन एंड व्हाट इज द कवरेज, एंड इफ द डिस्क्रिपेंसीज आर मोर देन व्हाट 10%, डिड यू एडजस्ट दैट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. और अगर आपने कोई वर्किंग कैपिटल लोन लिया विच इज एक्सीडिंग व्हाट 5 करोड़ एंड यू गिवन द इन्वेंट्री एज अ व्हाट सिक्योरिटी, देन डिड यू डू द क्वार्टरली return stock statements with the bank or not, and at the same point of time if there is any discrepancy it should be disclosed in the books of accounts. फिर पॉइंट नंबर 3 में आए थे हम लोग रिलेटेड पार्टी लोन्स में. याद रखना हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे. वी आर टॉकिंग अबाउट द रिलेटेड पार्टी लोन्स. कंपनी लोन ले रही है या दे रही है? दे रही है. इट इज ग्रांटिंग ऑफ द लोन्स, नॉट द रिसिप्ट. So they may try to confuse you by giving a fact that की company has taken a loan from the director. That is not covered under Caro. Caro में what is covered? Taken or granted? Granted. तो यहाँ पे company grant कर रही है loan, उसमें मेरे 6 areas to be covered. Area number 1, to whom you have given the loan? Was it a company, partnership firm, LLP or a other person? Am I correct? Then how much is your total loan? Out of which how much you have given to the related party? How much you have given to the unrelated party? My second concern was whether the terms and conditions are regular or not. My third concern was whether they are repaying your principal and interest on time. Fourth concern was if it is overdue for more than 90 days, whether the company has taken the remedial actions to recover the same. Or fifth concern was कि did you renew or did you give any fresh loan
or did you do any kind of extension to the already existing related party loans? If yes, what is the amount of such loans and what is the percentage of those loans in total to the loans? Are you getting the point? And last but not the least, if you have given any related party loans which are repayable on demand or on which repayment terms have not yet been decided, then tell me the details of such loans. Up to clause number 3, कोई problem? तो क्लॉज नंबर पहला किसके ऊपर था? पीपीई, दूसरा इन्वेंट्री और थर्ड किसके ऊपर था? हाँ, क्योंकि इंटेंजिबल भी एसेट्स में आते हैं. नहीं, they are not covered under PPI. I know that. For that we have AS26 intangibles, but yes, we need a details of intangibles क्योंकि अपने को पता होना चाहिए कि आपकी intangibles की वैल्यूएशन कितनी है. Because at the end of the day, अगर आप ओवर, क्या होता है, पंपिंग अप द बैलेंस शीट मींस व्हाट, आप अपनी बैलेंस शीट को ओवर इन्फ्लेट भी कर सकते हो विद द वैल्यू ऑफ व्हाट, इंटेंजिबल्स. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स, हम लोग यहाँ पे पूरे रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स, इसीलिए मैंने पीपीई के ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा था? फिक्स एसेट्स. तो फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल एसेट्स भी कवर, इनटेंजिबल एसेट्स भी कवर्ड होंगे. जो भी आपका बैलेंस शीट के अंदर आता है अदर देन करंट एसेट्स, दैट इज गोइंग टू बी कवर्ड हियर. ठीक है ना? मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट हियर फिक्स्ड एसेट्स, दैट्स व्हाई वी नेम द क्लॉज एज पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. बट हियर इनटेंजिबल्स का डिटेल्स भी चाहिए क्योंकि यस, intangibles do become the part of your balance sheet. So auditor wants to see that कि whether unnecessary overinflation of the balance sheet has taken place or not. अब तो मुझे बताओ, पेटेंट, कॉपीराइट और गुडविल, they are tangibles or intangibles? But do they become the part of your balance sheet? Due to that, what will happen? If I'll put it 400 crores of goodwill, 500 crores of patent and 600 crores of what do you say, patent. Now what will happen? Balance sheet value will increase or decrease? But actually it is in existence or not, that the auditor has to check. Na? So that's the reason we are asking the records for what? Intangible also. Clear everyone? Chalo. हाँ जी. हाँ. हाँ. In that, the research was given mentioned about evaluation reserve at investment allowance. So while presenting the answer, do we need to add that values also because they are not for. First of all, tell me what is the formula for reserves I told you? Did I tell you that you have to make any bifurcation between capital and revenue, or all to be added? But I am telling you the formula is that free reserves only. So for the purpose of the CARO, free reserves में you have to add them. मेरे को भी मालूम है सर, मैंने भी अकाउंट्स पढ़ा है. Revaluation reserve is not a free reserve. Investment allowance reserve. अगर DRR होता तो DRR का फुल फॉर्म क्या है? डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व भी होता है. Are you getting it? दो DRR होते हैं, एक डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, एक डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व. They are also not free reserves. So, but for the purpose of the CARO, what is the rule? We have to add all the reserves. Only एक ही चीज की एडजस्टमेंट है पूरे कारो में. What is that? कि अगर डेबिट बैलेंस ऑफ P&L है तो that you are first going to adjust with what? And later on to the, so you have to consider all the reserves. क्योंकि statement what is written that कि all the reserves to be considered as per schedule 3. तो शेड्यूल 3 में तो रेवेन्यू भी आते हैं as well as what? Capital reserve. Clear? Now clause number 4 everyone. The clause number 4 is basically your CA final का clause. तो इसके ऊपर अपन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे क्योंकि these sections anyways you are going to do it in CA final. Clause number 4 का नेम है compliance of 185 and 186. Repeat after me. अब मैं तुम्हें छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि व्हाट इज कंप्लायंस ऑफ सेक्शन नंबर 185 एंड 186. व्हेनेवर द कंपनी गिव्स एनी लोन टू द डायरेक्टर्स, व्हेन द कंपनी गिव्स एनी, वो कवर होता है सेक्शन नंबर 185 में. एंड व्हेनेवर द कंपनी गिव्स एनी लोन टू द अनदर कंपनी, वी कॉल इट एज इंटर कॉर्पोरेट लोन्स. व्हाट डू वी कॉल इट एज? वो कवर होता है 186 में. तो बेसिकली ऑडिटर यहां पे चेक क्या करेगा? ऑडिटर चेक करेगा कंपनी के लोन्स, और अगर कंपनी के लोन्स में स्पेशली इट इज रिटन दैट लोन टू व्हाट? डायरेक्टर, तो ऑडिटर एक्सपेक्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट व्हाट? कि यू मस्ट हैव कंप्लाइड विद सेक्शन नंबर 185. और अगर वो चेक करता है लोन्स में, और लोन्स में उसको दिखता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, विच लोन? याद रखना, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स आर दोज लोन्स विच आर एक्सचेंज बिटवीन द टू कंपनीज, नॉट बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म. So that is the reason word is what? Inter corporate. So one company giving the loan to what?
अनदर कंपनी, तो वो कवर होता है सेक्शन नंबर 186 में। तो 185 एंड 186 इज नॉट अ पार्ट, तो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर 4, दैट्स इट। क्लॉज नंबर 4 में अपन दो सेक्शन चेक कर रहे हैं, कौन से? 185 का कंप्लायंस एज वेल एज व्हाट, और अगर मेरे को while checking if I see that कि any kind of violation is there, तो I will report negative under clause number 4. First of all, before moving ahead, try to understand we have to report on every clause separately. यहां पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। When we do the financial statement reporting, we give the opinion on the total financial statement. But here we are giving the opinion on each and every clause. Point number 1. Point number 2. Whether you have a positive opinion or you have a negative opinion, both you have to mention. Are you getting the point? If you have a positive opinion, then also you have to touch the clause. And if you have negative opinion, then also you have to touch the clause. You cannot leave any clause unattended. You are not supposed to write not applicable there. Are you getting the point? या तो positive opinion होगी या नेगेटिव। हाँ, अगर क्लॉज बिल्कुल ही, सपोज यू आर डूइंग एन ऑडिट ऑफ अ आयरन एंड स्टील कंपनी एंड वन पर्टिकुलर क्लॉज इज देयर इन अवर कारो व्हिच इज स्पेसिफिकली मेंशन फॉर निधि कंपनीज। व्हिच कंपनीज? तो आयरन एंड स्टील कंपनी इज नॉट अ निधि कंपनी, देयर यू कैन राइट द नॉट एप्लीकेबल। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अदरवाइज यू हैव टू रिपोर्ट नॉट द रिपोर्ट वाइज, you have to report clause wise. So 21 opinions will come in your Caro report. How many opinions? Each clause wise opinion you have to give. Maybe he is good in clause 3, but he might not be good in clause 4. So clause wise opinion is to be drawn, not the total report opinion you have to give. Clear everyone? So tell me, मेरे को 4 clauses बताओ याद से। Plant, property, equipment, inventory, related party loans taken or granted. और क्लॉज नंबर 4 क्या है? कंप्लायंस ऑफ 185 186। इतना ही याद रखना। 185 बोलता है लोन टू डायरेक्टर्स और 186 बोलता है इंटर कॉर्पोरेट लोन। तो जब भी कंपनी एनी ऑफ दीज टू लोन्स इट विल टेक प्लेस, देन वी हैव टू चेक द कंप्लायंस ऑफ 185 एंड 186। इससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं करना है एट द इंटरमीडिएट लेवल, इसके लिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा टू रीच व्हाट फाइनल, वहां पे जाके करेंगे। ठीक है, अभी क्लॉज नंबर 5 यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया, तो लेट मी आस्क यू सम फ्यू क्वेश्चंस। पहले तो ये बताओ, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट टॉपिक ओवर लॉ में? हाँ क्या ना? तुम लोगों ने एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट टॉपिक नहीं किया? चलो मैं तुम्हें एक छोटा सा हिंट देता हूं, उसके अकॉर्डिंगली पूरा चैप्टर विल गो स्मूथली इनसाइड योर हेड। सुनो, there are two types of deposits everyone. One is known as members deposits, one are known as public deposits. What are the two? Every company in India can accept members deposit. What is the rule number 1? कोई भी कंपनी रहने दो, वो पब्लिक रहने दो, प्राइवेट रहने दो, they can accept the which deposits? Members. But as a company, if you want to accept the public deposit, which deposit? First of all, the name of the deposit is public deposit, so obviously which company can only accept is public. Plus, you should be eligible public company. You should be a which company? Sir, normal public company और eligible public company में difference क्या होता है? A normal public company is a normal public company which is satisfying its AOA का rules and regulations. Eligible public company means a company whose net worth is 100 crores or more or turnover is 500 crores or more. Repeat. Either net worth is 100 crores or more. So let's do this small query so that you can understand the clause which I am telling you. देखो, दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक होते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स और एक होते हैं मेंबर्स डिपॉजिट्स। व्हाट आर द टू डिपॉजिट्स? तो इसमें से इंटरनल कौन से हुए और एक्सटर्नल कौन से हुए? मेंबर डिपॉजिट हो गए इंटरनल, बिकॉज आई एम एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम माई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स। और वहां पे मैं क्या कर रहा हूं? सेकंड एरिया में पब्लिक, तो ऑब्वियसली यहां पे जाएगा प्रोस्पेक्टस और यहां पे आएगा प्राइवेट प्लेसमेंट। यहां पे क्या आएगा? प्राइवेट प्लेसमेंट। अब सुनना ध्यान से, आई एम रेजिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द मेंबर्स। इसमें एनी कंपनी कैन रेज। व्हाट इज द आंसर एवरीवन? एनी। बट व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक, ओनली एलिजिबल पब्लिक कंपनी कैन रेज। विच कंपनी कैन रेज? और आपको पब्लिक कंपनी को, एलिजिबल पब्लिक कंपनी कब बनते हैं? व्हेन योर नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100 crores और योर टर्नओवर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 crores।
और ये सब कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 73 टू सेक्शन नंबर 76. रिमेंबर द सेक्शन नंबर. व्हाट इज द सेक्शन? अब देखो अपना क्लॉज क्या बोल रहे हैं. इफ यू आर डूइंग एन ऑडिट ऑफ अ कंपनी and if the company has accepted any deposits under section number 73 to 76, so in that case I have 4 questions to ask to the company. How many questions? 4. मेरा question number 1 पढ़ो, क्या है? Whether the deposits have been accepted from whom? Public. क्या आपने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? अब सुनना ध्यान से, यहां पे मैंने रीड द होल सेंटेंस अगेन. I am not asking about the members' deposits. I am more focusing upon what? Public. तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Whether any deposits have been accepted from whom? Public. क्वेश्चन नंबर 1. मेरा क्वेश्चन नंबर 2, if yes, अगर कंपनी ने बोला हाँ हमने पब्लिक से डिपॉजिट लिए, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, did you follow सेक्शन नंबर 73 to 76? क्योंकि अगर आप पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, you cannot accept more than 35% of the total paid up share capital plus free reserve plus securities premium. What is your limit, everyone? First of all, you should be a public company. What is point number 1? Second point, you should be a eligible public company, which is a point number 2. And what makes you eligible? या तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर होना चाहिए. तो मैंने कंपनी के पास गया, मैंने कहा आपने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे? कंपनी कर रही हाँ. मैंने कहा अपना नेटवर्थ दिखाना. उन्होंने बोला है 95 करोड़. अभी कहानी खत्म नहीं हुई. मैंने बोला आइदर ऑफ द 2 कंडीशन. मैंने कहा सर अच्छा नेटवर्थ ठीक है बट मेरे को टर्नओवर दिखाओ 780 करोड़. कितना? कैन दे और दे कांट? फिर मैंने पूछा, मैंने कहा ठीक है आपने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे बट डिड यू फॉलो सेक्शन नंबर 73 टू सेक्शन नंबर 76? पहला 73 टू 76 क्या बोलता है? 73 बोलता है कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. विच वन? और 76 क्या बोलता है? क्रेडिट रेटिंग इज रिक्वायर्ड. व्हाट इज रिक्वायर्ड? क्रेडिट रेटिंग पता क्या होती है? व्हाट इज क्रेडिट रेटिंग? अच्छा आपको सिबिल स्कोर पता है? सिबिल स्कोर किसका होता है? इंडिविजुअल का. क्रेडिट रेटिंग होती है कंपनी की. तो कंपनी का अगर AAA+ क्रेडिट रेटिंग है, व्हाट डज दैट मीन? कि इफ यू विल गिव द मनी टू दिस कंपनी योर मनी इज सुपरबली सेफ. लेकिन इफ द कंपनी इज हैविंग अ क्रेडिट रेटिंग ऑफ B-, इज इट मोर सेफर और लेस सेफर? और अगर Z पे आ गया तो लॉस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इफ यू आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, आपको ये 3-4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. पहली, यू शुड बी अ विच कंपनी? पब्लिक. यू शुड बी एलिजिबल पब्लिक. मैक्सिमम 35%. तुम्हें क्रेडिट रेटिंग चाहिए और SR चाहिए. टेल मी द 5 कंडीशंस. What are the 5 conditions, everyone? You should be a which company? Public. Plus you should be a eligible public company. आपका मैक्सिमम परसेंटेज 35. 35% किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? टोटल पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम. प्लस आपको कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? स्पेशल. और प्लस यू नीड टू ऑब्टेन अ विच रेटिंग? क्रेडिट. ये 5 थिंग्स ऑडिटर इज गोइंग टू चेक. एंड इफ दे आर अनेबल टू शो मी, it means they have violated the section number 73 to 76. तो मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भैया आपने डिपॉजिट तो एक्सेप्ट कर लिए बट डिड यू फॉलो द डायरेक्शंस इशूड बाय होम? आरबीआई. अब इसको लॉजिकली सुनना जो मैं बोल रहा हूं. हम लोग बैंक में भी डिपॉजिट करते हैं, FD बोलते हैं उसे. व्हाट इज FD? बैंकिंग कंपनीज आर रेगुलेटेड बाय होम? कंपनीज एक्ट में दिस इज द ओनली चैप्टर विद द RBI इंटरफेस. क्यों? क्योंकि नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? डिपॉजिट्स. मैं तुम्हें बहुत सिंपल वे में बताता हूं. मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसने ऑफर दिया पब्लिक डिपॉजिट का एट द रेट ऑफ 18% पर एनम. कितना? और यहां पे बैंक तुम्हें FD का ऑफर दे रहा है एट द रेट ऑफ 10%. वेयर यू वुड लाइक टू लैंड योर मनी? बट अगर आप कंपनी को पैसा देते हो और अगर आप बैंक को पैसा देते हो, इफ वी कंपेयर बोथ, विच वन इज मोर सेफर? बैंक. Company is what? Less safer. So Ministry of Corporate Affairs has given some special powers to whom? RBI. कि when it comes to the deposit rules in the Companies Act, which rules? Who will interfere? RBI decide करेगा कि company how much interest they can give.
और आरबीआई हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर यू कैनॉट गिव द इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट मोर देन द बैंक्स विच आर ऑफरिंग ऑन द एफडी, क्योंकि दैट विल क्रिएट अ रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ द पब्लिक एंड दे विल एंड अप पेइंग द मोर मनीज टू होम, कंपनीज, लेस टू होम, बैंक। और बैंक के पास अगर इनफ्लो नहीं होगा तो बैंक विल नॉट बी एबल टू गिव अ लोन, और अगर लोन नहीं देगा तो इनकम विल बी हायर और लोअर, द होल इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब्ड। तो देयरफॉर हु हैज टू इंटरफेयर? आरबीआई। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कंपनी को? एज पर द हुज डायरेक्शंस? आरबीआई। मेरे को मेरे 3 क्वेश्चन बताओ क्लॉज नंबर 5 में। क्या आपने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे? उन्होंने बोला हाँ। सर आपने 73 टू 76 सेक्शन फॉलो किया? हाँ। डिड यू फॉलो डायरेक्शंस इशूड बाय होम? आरबीआई। फिर मेरा लास्ट क्वेश्चन था वेदर एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय होम? एनसीएलटी। सर एनसीएलटी कहां से आ गया? अब सपोज डिपॉजिट्स का मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है 36 मंथ्स। हाउ मेनी मंथ्स एवरीवन? एंड इफ यू डू नॉट रीपे देयर मनी विद इन हाउ मेनी मंथ्स? तो एनसीएलटी इंटरफेयर करता है, तो एनसीएलटी पनिशेस यू। तो बेसिकली आई एम आस्किंग अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट। इफ द एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय होम? एनसीएलटी। अगर वो बोलेंगे नहीं, it means company is genuine, they have repaid their all the deposits on time. But if the NCLT order has come, it means कुछ तो गड़बड़। करेक्ट है? अब मेरे को ये बताओ what are the 4 questions I asked in deposits? पब्लिक, अपने को मेंबर डिपॉजिट टच ही नहीं करना है, अपने को कौन सा? पब्लिक। पब्लिक है तो 73 टू 76, उसके बाद आरबीआई का गाइडलाइंस, उसके बाद एनसीएलटी का ऑर्डर। अगर तुमने मेरे को ये 4 क्राइटेरिया पे सेटिस्फाई कर दिया तो आई विल गिव यू द पॉजिटिव ओपिनियन ऑन योर क्लॉज नंबर 5। मेरे को 5 क्लॉजेस बुलाओ, 1 to 5, 5 to 1, 5 to 1 डिपॉजिट्स। अभी टाइम आएगा, डोंट वरी। आज अपना पूरा कंसंट्रेशन इसी के ऊपर ही है। आज आपको ऐसे और ऐसे रिवर्स में परफेक्ट करवाएंगे। फर्स्ट वन 5 2 2 4 क्या 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 कंप्लायंस ऑफ 185 1 5 2 5 to 1। एक सेकंड, ये तो चीटिंग हो रही है, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा 5 to 1 पहले मैं बोलता हूं, तुम बोल रहे राइट या रॉन्ग। 5th वन डिपॉजिट, 4th वन ओके, फर्स्ट वन 2 and 3। अब अपन आ गए हैं क्लॉज नंबर 6 के ऊपर। अभी देखो क्लॉज नंबर 6 किसके ऊपर है? अब ये मत बोलना कि लॉ में तुम्हारा 148 सेक्शन भी नहीं हुआ। 148 हो गया। वो किसके बारे में बोलता है? कॉस्ट रिकॉर्ड कौन करता है? कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग सीएमए या प्रैक्टिसिंग सीए? प्रैक्टिसिंग सीएमए जब कॉस्ट ऑडिट करने आएगा वो क्या चेक करता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स या तुम्हारे कॉस्ट रिकॉर्ड्स? तो बेसिकली कॉस्ट ऑडिट होता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। Now we hire a cost auditor, and when he comes to our company to do the cost audit, he is not more interested in the normal books of accounts which a financial auditor checks, because that is already being checked by whom? Financial। We are interested in which records? Cost record। तो यहां पे अपन सिंपल, लेकिन कारो ऑडिट कौन कर रहा है? फाइनेंशियल ऑडिटर। कारो ऑडिट हु इज डूइंग? कॉस्ट ऑडिट किसने किया? कॉस्ट ऑडिट। तो आई एम नॉट गोइंग इनसाइड द कॉस्ट ऑडिट, आई एम नॉट चैलेंजिंग हिज कॉम्पिटेंसी। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कंपनी को, एज पर सेक्शन नंबर 148 सबसेक्शन 1, यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यू आर विच कंपनी? एंड ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिट मस्ट हैव टेकन प्लेस ऑन यू। कंपनी सेड यस। डिड यू मेंटेन प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर CRA 1 और नॉट? व्हाट इज माय क्वेश्चन? डिड यू मेंटेन प्रॉपर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर फॉर्म नंबर? मेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि आपके कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड है या नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू इंस्पेक्ट देम। इंस्पेक्शन इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो किसकी है? कॉस्ट ऑडिट। तो मेरे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है, डिड यू मेंटेन योर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एज पर CRA 1? व्हाट इज द फॉर्म नंबर एवरीवन? इसे बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 1। व्हाट इज CRA का फुल फॉर्म? कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। जब आप CMA के फाइनल में आओगे और अगर अपन मिले फाइनल के ऑडिट में
तो उसमें पढ़ेंगे अपन कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये बहुत बड़े रूल्स है, राइट और नॉट? तो रिमेंबर, मेरा क्लॉज नंबर 6 किसके बारे में है? Am I going to examine then or I am going to ask a single question? What is my single question? Did you maintain cost records as per CRA 1? That's it. My 6 clauses are over. 1 to 6. Plant, property, equipment, inventory, related party loans, compliance of 185, 186, and deposits, section number 73 to 76, and cost record. 7 क्लॉजेस तक कोई 6 क्लॉजेस तक कोई प्रॉब्लम है? इसका मतलब क्लॉज नंबर 5, 4 एंड 6 में देयर आर नो चेंजेस। चेंजेस केम इन 1, 2 एंड 3, और मैंने वहां पे स्पेशली लिखा भी हुआ है चेंज बोल के, ठीक है? अभी देखो क्लॉज नंबर 7 भी सेम है। क्लॉज नंबर 7 किसके बारे में? स्टैट्यूटरी ड्यूज। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लॉज एवरीवन? अब सुनना ध्यान से, स्टैट्यूटरी ड्यूज का क्लॉज क्या बोलता है? पहले तो मेरे को ये बताओ, is income tax your statutory duty? Income tax, is it your right or obligation? GST, wealth tax, customs, municipal taxes, professional taxes, जो भी अपने को गवर्नमेंट को देना है, that is my what? Obligation. अब यहां पे मैं ये क्लॉज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ध्यान से सुनना। Disputed taxes and undisputed taxes. I'm going to divide it into 2 parts. What are the 2 parts? 2 questions relating to undisputed and 2 questions relating to disputed. Total 4 questions. My 2 questions relating to undisputed. पहले तो ये बताओ, undisputed tax क्या होता है? सुनो, मैंने गवर्नमेंट को 1 करोड़ टैक्स पे किया एज अ कंपनी। गवर्नमेंट इज सेंडिंग मी अ डिमांड नोटिस ऑफ 1.2 करोड़। कितना? उसमें से 1 करोड़ आई हैव ऑलरेडी वर्ड पेड। इसमें से अनडिस्प्यूटेड कितना है और डिस्प्यूटेड कितना है? 1 करोड़ इज व्हाट? अनडिस्प्यूटेड, जो मैं भी एग्री कर रहा हूं और गवर्नमेंट भी एग्री कर रही है। हाउ मच गवर्नमेंट इज आस्किंग मोर? 20 लाख रुपीस एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्यूटेड। नाउ माय क्वेश्चन नंबर 1 टू द कंपनी इज कि भैया, डिड यू पे योर अनडिस्प्यूटेड टैक्सेस ऑन टाइम? व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 1? Did you pay your undisputed taxes on time? उन्होंने बोल रहे हाँ, we paid our undisputed taxes on time. Are there any areas? What is my second question? Areas means what? Outstanding है या नहीं है? उन्होंने बोले कोई outstanding नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, ये बताओ, is there any dispute going on relating to your taxes? उन्होंने बोल रहा हाँ। तो मैंने पूछा 4th question, in which tribunal the dispute is going on? Tell me the 4 questions I asked. Did you pay your undisputed taxes on time? Are there any areas? Is there any dispute going on relating to your taxes? Is there any dispute going on relating to your taxes? And if yes, in which tribunal your dispute is going on? Tell me the forum name. जैसे अपना जब इनकम टैक्स का कोई डिस्प्यूट होता है, वो ITAT में जाता है, इनकम टैक्स एपलेट ट्रिब्यूनल। वैसे अपना जीएसटी की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट होती है, सेस्टैट, एंड देन वी हैव वेरियस कोर्ट्स रिलेटिंग टू द वेरियस टैक्सेस। अगर आप लेबर टैक्सेस पे करते हो तो आपके पास नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल होते हैं। तो डिफरेंट जैसे कंपनी लॉ का हाई कोर्ट कौन है? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और कंपनी लॉ का सुप्रीम कोर्ट कौन है? नहीं मालूम। एनसीएलटी। हाई कोर्ट कौन है? एनसीएलटी। और कंपनी लॉ का सुप्रीम कोर्ट क्या है? If you are not satisfied with the high court order of the NCLT, you don't have somebody to file an appeal. अरे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आता ही नहीं भाई कंपनी लॉ में। कंपनी लॉ का हाई कोर्ट इज एनसीएलटी। व्हाट इज एनसीएलटी? तुम्हें क्या लगता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट है? आई एम सेइंग इट्स लाइक अ व्हाट? हाई कोर्ट। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एनसीएलटी, you file sometimes the appeal to NCLAT. What is NCLAT? National Company Law Appellate Tribunal. What is A stands for? Appellate मतलब वो अथॉरिटी होते हैं जहां पे आके आप अपील करते हो। अब मान लो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बोला कि 1.5 करोड़ टैक्स भरो, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, तो यू विल फाइल एन अपील टू ITAT. What is ITAT? Income Tax Appellate Tribunal.
तो एपलेट ट्रिब्यूनल्स वो होती हैं जहां पे जाके आप अपील करते हो। जैसे मान लो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ सेबी, तो आपके पास सेट है, सिक्योरिटीज एपलेट ट्रिब्यूनल। तो हर एक लॉ में उसका खुद का हाई कोर्ट होता है और खुद का क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। बट अपने को वो क्वेश्चन मैंडेटरी नहीं है। पहले मेरे को ये बताओ, व्हाट आर द 4 ओवरऑल क्वेश्चंस आई एम आस्किंग? Are you paying your undisputed taxes on time? Is there any arrears for more than 6 months? I forgot to tell you, arrears for more than 6 months. उसके बाद, is there any dispute? If there is any dispute, in which forum it is going on? तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड कर दिए। अब ये सारे क्वेश्चन पढ़ो। फर्स्ट 2 questions are relating to undisputed tax. Read the point number 1. Whether the company is what? Regular in the payment of what? Its undisputed statutory dues or not. What is the question number 2? If not, what is the extent of what? Arrears. And are these arrears pending for more than what? 6 months. फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या था? Is there any amount of dispute involved or in which forum your dispute is pending? So this is what brings an end to your clause number 7. यहां तक सब कुछ easy था। क्या था? Easy. अब थोड़ा लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी क्लॉज नंबर 8 ऑनवर्ड्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि क्लॉज नंबर 8 इज अ न्यू क्लॉज। क्लॉज नंबर 8 इज अ, पहले मेरे को 7 to 1, 1 to 7 बोल दो। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, लोन्स और कंप्लायंस ऑफ 185, 186, डिपॉजिट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, स्टैट्यूटरी ड्यू। जंबल्ड वे में पूछ लूं, क्लॉज नंबर 4 185, 180, क्लॉज नंबर 2 1 1, okay, 7 is what? Statutory dues. Okay, 6 2 3 to 6 related party loans, compliance of 185, 186, deposits, cost records, statutory dues. Are you getting the point? अब आया अपना क्लॉज नंबर 8। मैं तो ऐसे डरा रहा था, सब इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लॉज नंबर 8 सबसे चिल्लर क्लॉज है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? न्यू क्लॉज। और इस क्लॉज का नाम पढ़ो, क्या लिखा हुआ? अनरिकॉर्डेड इनकम। कौन सा इनकम? इसके ऊपर सिर्फ 2 ही चीजों के अपने को ध्यान देना है। मैं मैनेजमेंट के पास गया, मैंने कहा सर मेरे को सुनने में आया आपके ऊपर इनकम टैक्स रेड हुआ। तो क्लाइंट बोल रहा है हाँ हुआ। कितना? मतलब हाउ मच वॉज द इनकम रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड? हाउ मच दे फाउंड द विच इनकम? अनरिकॉर्डेड। उन्होंने बोल रहा सर 50 करोड़ रुपीस। कितना? जस्ट एन एग्जांपल। मैंने कहा ओके दैट इज फाइन, बट डिड यू नाउ रिकॉर्ड इट बैक टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट? आफ्टर रेट तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट अगेन और नॉट? So these are my 2 questions. Look at my question number 1. Whether there is any unrecorded income which were not recorded in books of accounts but disclosed and surrendered under the which assessment? Income tax assessment. Under the which act? तो मैंने क्लाइंट को पूछा, मैंने कहा रेड हुआ था? कहता हाँ सर मंथ ऑफ मार्च में हुआ था। How much unrecorded income they disclosed? They said that 50 crores. Now what is my second question to them? If so, whether such unrecorded income now have been recorded in what? Books of accounts during the year or not? क्योंकि now when the income tax department knows that कि you were hiding the 50 crores of income, so when you have to record it in the books of accounts or you can still keep it unrecorded? You have to record it in the books of accounts and pay what? Tax on the same along with penalty. So what are my 2 questions? Tell me my 2 questions. Is there any income tax assessment took place and how much they found out your which income? Unrecorded. And now did you record that income in your what? Books of accounts. So clause number 8 is over. So tell me 8 to 1. Unrecorded income. अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। Unrecorded income, statutory dues, cost records, deposits, compliance of 185, 186, फिर related party loans, इन्वेंट्री, प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। क्लियर है? क्लॉज नंबर 8 तक कोई प्रॉब्लम? एंड रिमेंबर क्लॉज नंबर 8 इज व्हाट? न्यू क्लॉज। चेंजेस कहां पे आए अभी तक? 1 में आया, 2 में आया, 3 में आया, और क्लॉज नंबर 8 इज कंप्लीटली व्हाट? न्यू। अभी आया क्लॉज नंबर 9। क्लॉज नंबर 9 क्या बोलता है
कि भैया अगर आपने लोन ले रखे हैं तो उनको रीपे करना है या नहीं करना? इफ यू हैव टेकन अ लोन, डू यू हैव टू कीप इट विद यू और यू हैव टू रीपे? तो पढ़ो क्लॉज का नाम क्या है? डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। तो ये तुम्हारे डिफॉल्टर के ऊपर क्लॉज है। दिस इज कॉल्ड डिफॉल्टर क्लॉज। विच क्लॉज? एंड क्लॉज नंबर क्या है? 9। देखो मेरा क्वेश्चन नंबर 1, रीड द क्वेश्चन नंबर 1। वेदर देयर इज एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स एंड इंटरेस्ट, इफ सो गिव मी द डिटेल्स लेंडर वाइज। गिव मी द डिटेल्स, हाउ मच पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इज देयर एंड हाउ मच अमाउंट इज डिफॉल्टेड। सपोज मैंने 8 लोन्स लिए। कितने लोन्स? उसमें से 5 रीपेड, 3 डिफॉल्टेड। तो हाउ मच इंफॉर्मेशन आई एम गोइंग टू गिव? ऑल 8 और ओनली 3? डिफरेंट लेंडर वाइज। एक एसबीआई का लोन था, एक आईसीआईसीआई का, एक एचडीएफसी का। नाउ पीरियड ऑफ डिफॉल्ट इज 6 months, 8 months, 12 months, and amount of default is 12 crores, 18 crores, 28 crores. This is just an example I am telling you. Tell me the question number 1 again. Whether there is any default in the repayment of borrowing and interest. If so, give the details which wise? Lender wise. Lender wise में मेरे को 2 डिटेल चाहिए, पीरियड ऑफ डिफॉल्ट, अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट। फिर मेरा क्वेश्चन नंबर 2, whether your company is declared as a which defaulter? Willful defaulter by any bank, financial institution or lender. What do you mean by willful defaulter? You wantedly defaulted. जैसे अपना ये माल्या साहब, विजय माल्या क्या हुआ? पैसा लेके गया और उसने डिक्लेयर किया कि नहीं दे तू, तो ही willfully what? Defaulted. So that is the same question I'm asking to the company. Is there any willful default done by you? उन्होंने बोल रहे नहीं। तो टेल मी माई 2 क्वेश्चंस ऑन द डिफॉल्ट। एनी डिफॉल्ट, गिव मी द लेंडर वाइज डिटेल्स। लेंडर वाइज डिटेल्स में 2 डिटेल्स, पीरियड, अमाउंट। मेरा क्वेश्चन नंबर 2, डिड यू हैव बीन डिक्लेयर्ड एज अ व्हाट? विलफुल डिफॉल्ट। मेरा क्वेश्चन नंबर 3, रीड द क्वेश्चन नंबर 3। वेदर द लोन्स वर यूज्ड फॉर द पर्पस अदर देन फॉर विच इट वाज रेज्ड, इफ सो फॉर व्हाट पर्पस एंड अमाउंट। मैं एसबीआई के पास गया, मेरा क्लाइंट एसबीआई के पास गया, he took the 10 crores of loan from SBI to purchase the plant and machinery. To purchase what? So what is the purpose of the loan? But he bought one villa in Gachibowli. अब मेरे को ये बताओ, did you use the money for the purpose it was raised or for the other purpose? And last में क्या लिखा हो? If so, for what purpose you use the money and amount. So tell me my 3 questions in default. Question number 1, is there any default? Give me the lender wise details, period and amount. Are you a willful defaulter? Did you use the money for a purpose other than the purpose for which it was raised? If so, give me the details for which purpose and amount. मेरा question number 4 क्या है? पढ़ो। If any short term loan you have used for a which purpose? Long term purpose. What is the amount of that loan and what is the nature of purpose for which you use it? अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या होता है? विच यू हैव टू रीपे, बट इंस्टेड ऑफ रीपेइंग यू आर यूजिंग द शॉर्ट टर्म लोन फॉर द विच पर्पस? लॉन्ग टर्म लोन। ये तो तुमने टैक्स में भी पढ़ा होगा ना, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पढ़ा है, उसमें हम शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म और कैन नॉट बी, कैन बी, बट लॉन्ग टर्म कैन नॉट बी। यहां पे वही बैंक भी वही बोल रहा है। तुमने मेरे को बोला था कि ये लोन किस पर्पस के लिए? शॉर्ट टर्म, बट यू आर यूजिंग इट फॉर व्हाट? लॉन्ग टर्म। अब तो मुझे बताओ, यू टुक द लोन फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, विच वन? तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? करंट एसेट। तो करंट एसेट इज अ लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म लोन? शॉर्ट टर्म, बट यू आर यूजिंग इट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विच विल गेट कंप्लीटेड इन 10 years. So you are telling me short term loan, but you are using it for long term purpose. So that is what my question to the company. What is my 5th question to the company? ये बहुत funny question है। 5th or 6th point are the changes. What are the 2 points changes? 5th and 6th. What is the change? If the company has taken any loan to pay off obligations of its what? Subsidiaries, associates and joint venture, nature and amount. मैंने पूछा, मैंने कहा सर ये लोन लिखा हुआ है आपके यहाँ पे 180 करोड़ का, where you have used it? Oh Rohit, we took this 180 crores of loan to pay out the loans of our subsidiary. मतलब holding is taking the loan to pay its own obligations or to pay the obligations of its components. किसका obligation pay कर रहा हो ना? Subsidiary. इसका मतलब subsidiary is capable or incapable?
who is making the payment of the loan on the behalf of subsidiary? Holding. So that is not right. Subsidiary should have taken the loan, they should have paid it on their own. But why holding is taking the loan and paying on the behalf of whom? Subsidiary. So that is my concern number 5. And what is my concern number 6? If the company has raised any loan by pledging the securities of what? Subsidiary, associate or joint venture. If yes, details and any default. अब सुनना ध्यान से. होल्डिंग कंपनी गई किसके पास? एसबीआई के पास. सर मेरे को 500 करोड़ का लोन चाहिए. एसबीआई ने क्या पूछा? सिक्योरिटी. उन्होंने बोल रहा है सर मेरे पास तो सिक्योरिटी नहीं है, बट हाँ मेरे सब्सिडरी के 500 करोड़ के एसेट्स है, वो ले लो. आर यू प्लेजिंग योर एसेट्स और यू आर प्लेजिंग योर सब्सिडरीज एसेट्स? That is not allowed. Are you getting the point? So tell me my 6 areas of concern, everyone. मेरा क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल था. मैंने पूछा क्लाइंट को, मैंने कहा भाई तुमने कोई डिफॉल्ट किया है? बोल रहे हैं हाँ. गिव मी द विच वाइज डिटेल्स? लेंडर वाइज. व्हाट आर द 2 डिटेल्स? पीरियड एंड अमाउंट. मेरा क्वेश्चन नंबर 2, आर यू अ विलफुल डिफॉल्टर? माय क्वेश्चन नंबर 3, डिड यू टेक एनी शॉर्ट टर्म लोन एंड यूज इट फॉर व्हाट? लॉन्ग टर्म. मेरा क्वेश्चन नंबर 4, you took a loan for one purpose but you are using it for what? Another purpose. Question number 5, did you take any loan to repay your obligations or your components? Question number 5, did you take any loan by pledging your securities or components? So these are the 6 areas of concern which have in the clause number 9. और यहां पे changes कहां पे है? 5 and 6. 5 and 6 are the new points. Are you getting the point? तो आई नीड एन इंडिविजुअल हु विल टेल मी द 6 पॉइंट्स. कोई बताएगा या मैं चूज करूं? मैं चूज कर लेता हूं. ठीक है, आज गब्बर टेस्टिंग होगी. हाँ जी भाई खड़े हो जाओ, येलो टी शर्ट के पीछे जो बैठे हुए हैं. हाँ जी आप ही हो जाओ, हो जाओ. हाँ भाई, हाउ मेनी क्लॉसेस वी आर डन विथ? पक्का 9 to 1 रिवर्स. बताओ. अरे मैंने अभी अंदर का तो पूछा ही नहीं, मैं तो सिर्फ हेडिंग पूछ रहा हूं. गिव मी द 9 हेडिंग्स इन रिवर्स और टेल मी हाउ मेनी यू नो. बीपी, पीपीई, अच्छा बीपी ब्लेंड स्प्राइट, सॉरी बोरिंग पावर. समझ गया बेटा, रात को सपने किसके आते तुम्हें? अभी नशा उतरा नहीं. अच्छा पीपीई और हाँ एंटिकिटी, इन्वेंट्री. अच्छा इन्वेंट्री. थर्ड ये जो दोस्त बैठे ना आजू बाजू, नेक्स्ट टर्न उन्हीं की है, तो भैया ध्यान से हेल्प करना. ओ येलो टी शर्ट पक्का ना? देख ले बेटा, नेक्स्ट तेरी बारी है. यहां तो लाइनिंग वाला होगा. चलो बोलो नेक्स्ट. कौन सा क्लॉज नंबर है भाई? क्लॉज इतने तो क्लॉज ही नहीं है. हाँ क्लॉज नंबर 5. चलो एक बात बताओ, तू बैठ जा, तू साइड वाला खड़ा हुआ. हाँ अब तू बता 9 to 1 रिवर्स. नहीं आते? पक्का नहीं आते? हाँ के ना, लॉयल हो जाओ. नहीं आते? बार 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 आउट. ओ भाई आउट. चलो मैं एक और जने को पिक करता हूं, क्योंकि मेरे को पता क्या है, मेरे को प्रॉब्लम है जब मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूं ना, आई नीड समथिंग इन रिटर्न. समझ में आ रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आर यूजलेस व्हेन यू डू नॉट गेट एनी व्हाट? रिटर्न. क्योंकि मेरे को मेरे टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है. आई डोंट नो वेदर यू गिव अ रिस्पेक्ट टू योर टाइम और नॉट, बट आई हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन लाइफ, तो आई रिस्पेक्ट माई टाइम अ लॉट. हम आप बताओगे सारे क्लॉज 9 to 1? तुम एब्सेंट थे कल, बैठ जाओ. तुम बताओगी? हाँ 9 to 1 रिवर्स में. बाहर नहीं जाना है तो बता दो. हाँ ट्राई करो. ओ हेलो, किधर? फायदा क्या, टाइम वेस्ट कर रहे हो? मस्त जाके बाहर हवा हवा लो. हाँ बताओ अम्मा. 9 to 1.
cost records. हाँ हाँ हाँ, यू नो दैट। करो, उल्टी करो, अटक गई यहीं पे। हाँ, Compliance of section. कॉस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर क्या था? कॉस्ट रिकॉर्ड 6 है ना? कॉस्ट रिकॉर्ड इज 6, राइट? फिफ्थ वन, ओके। फोर्थ वन, फोर्थ वन खा गई, भूख लगी हुई है। फोर्थ क्लॉज क्या है भाई? कंप्लायंस ऑफ 185 एंड 183। तो अगर एग्जाम में आ गया तो 4 मार्क्स चले जाएंगे। थर्ड, डिपॉजिट, हाँ Inventory. पीपी, ठीक है। अब मैं कौन बताएगा इधर से? और लास्ट वालों को कभी टेस्ट नहीं किया यार। हाँ भाई, चेक शर्ट लास्ट, खड़े हो जाओ। अरे तूने चेक पे, अच्छा तेरा भी चेक किया क्या? हाँ। क्लॉज नंबर 9 क्या है? हाँ, क्या बोल रहा है? डिफॉल्ट इन द बोरिंग। टेल मी ऑल द 6 क्वेश्चन। भाई कॉपी तो कर ले, सामने ही तो पढ़े। एनीबडी नोज ऑल द 6 क्वेश्चन? टुडे तो यू केम, यू कैन टेल ऑल 6। अब बैठ जाओ, आप बताओ। हाँ, ओके, अमाउंट। What was question number 2? What was question number 2? तीसरा क्या था? You took a loan for one purpose by using it for another. Fourth one, short term use for long. Fifth वाला क्या था? You are taking a loan but you are paying the obligations of your. और sixth वाला क्या था? You are taking a loan but you don't have anything to pledge. You pledge whose properties? समझ में आया सर? तो याद रखना सर, कारो, स्पेशली कारो टॉपिक को आपको लाइट नहीं लेना है व्हेन यू ऑलरेडी नो दैट इट इज गोइंग टू कम फॉर द 6 to 8 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है ना? क्योंकि ये पूरा न्यू टॉपिक है। तो मेरे को और स्लो बोलोगे, अपन और स्लो जाएंगे, बट आई थिंक आई एम जस्टिफाइंग द स्पीड। हम लोग ज्यादा ओवर स्पीड तो नहीं कर रहे ना? तो अपने कितने क्लॉजेस हो गए सर? 9 क्लॉजेस में से हमने 4 ऐसे क्लॉजेस करे जिसमें चेंजेस थे और 1 ऐसा क्लॉज किया जो बिल्कुल ब्रांड न्यू था। व्हाट वाज अ ब्रांड न्यू क्लॉज? व्हाट वाज द नेम? उसमें 2 क्वेश्चंस क्या थे कि when the income tax raid has happened, तो इनकम टैक्स रेट जब हुआ था तो अपना क्वेश्चन क्या था उसमें? तो अपना क्वेश्चन था कि भैया एनी income got disclosed during the assessment or not? If disclosed, which was unrecorded, did you now record it in the books of accounts or not? ठीक है। अभी क्लॉज नंबर 10 बहुत इजी है, बट आई डोंट नो व्हाई सो मेनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लॉज? सिंपल नाम पढ़ो। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता? तुमने जो पैसा रेज किया था वो कहां खर्चा किया? Where did you apply the money? पहले अपन समझेंगे इसको। अपन क्या करेंगे एक्चुअली, इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आईपीओ मालूम है? आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ क्या होता है? पहले लेफ्ट साइड वाला पार्ट पढ़ो। इफ द कंपनी हैज रेज्ड द फंड्स वाया व्हाट? आईपीओ, एफपीओ, एंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड। ठीक है। और राइट साइड पढ़ो। If the company has raised the funds via preferential allotment, private placement of securities and convertible debentures. Tell me the 3 words you are able to see. Preferential allotment, private placement of securities and, तो अपन कैपिटल वाले पॉइंट को साइड पे रख देते हैं, यहां पे डेट वाले पॉइंट्स है। What are the points here? Capital, और here कौन से पॉइंट्स हैं? डेट।
But whether you are doing IPO, FPO, private placement, or preferential allotment, or convertible debentures, are you getting the money or you are paying the money? Getting the money. अब मेरा पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इफ यू हैव यूटिलाइज दैट फॉर द पर्पस, वॉज देयर एनी डिफॉल्ट, वॉज देयर एनी डिले, वॉज देयर एनी सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन टू बी व्हाट रिपोर्टेड? ये आईपीओ और एफपीओ के केस में अपने को 3 क्वेश्चन पूछने हैं. कंपनी को मैंने पूछा, सर आपने लास्ट ईयर आईपीओ किया था 700 करोड़ का, फिर आपने 300 करोड़ का क्या किया एफपीओ, टोटल कितना हो गया? वो 1000 करोड़ आपने यूटिलाइज करे? कहते हाँ यूटिलाइज करे. मैंने कहा कहां करे? कहता सर वी वांटेड टू यूटिलाइज इट फॉर द प्लांट एंड मशीनरी बट वी यूज्ड सम ऑफ द पार्ट फॉर द व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर. तो मैंने बोला, मैंने कहा सर ये तो क्या है? डिफॉल्ट है. फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सर डिड यू यूज दिस मनी ऑन टाइम और नॉट? कहते सर वी वांटेड टू यूज इट मनी बाय जून बट एक्चुअली इट टुक दिसंबर फॉर अस टू यूटिलाइज दिस मनी. इट मींस देयर वाज अ व्हाट? डिले. फिर मैंने थर्ड क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा इज देयर एनी इंस्टेंस वेयर यू यूटिलाइज दिस मनी रॉन्गली फॉर वन पर्पस बट लेटर ऑन यू व्हाट? रेक्टिफाइड द सिचुएशन. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन. So tell me, what are the 3 areas I'm concerned? Defaults, delay, subsequent. Relating to whose money? IPO money, FPO. पता क्यों ऑडिटर यहां पे इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि भैया IPO and FPO is whose money? Public money. I'm answerable to them. और मेरे को उनको बताना पड़ेगा कि तुमने जो इतना चिल्ला के प्रोस्पेक्टस में लिखा था कि हम लोग ये पैसा यहां यूज करेंगे, इधर करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे, डिड यू एक्चुअली डू इट और नॉट? तो मेरे 3 क्वेश्चन क्या थे? डिफॉल्ट, डिले, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन. फिर मैं राइट साइड आ गया. राइट साइड पे मैंने पूछा, मैंने कहा सर आईपीओ एफपीओ का तो हो गया, डिड यू डू एनी काइंड ऑफ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? इसको हम लोग इनडायरेक्टली बोलते हैं राइट शेयर्स. विच शेयर्स? राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? विच इज ऑफर्ड टू होम. उसमें हम आउटसाइडर को प्रेफरेंस देते हैं या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को? So did you raise any money via what? Preferential allotment. Did you raise any money via what? Private placement. Did you raise any money via what? तो मेरे 3 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, did you do the compliance of section number 42 and 62? 42 है private placement और 62 है further issue of capital. What is 42? And अच्छा मेरे को ये बताओ, प्राइवेट प्लेसमेंट आता है तुम्हें? हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और दिस इज प्रोहिबिटेड. प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं? 200. QIBs इंक्लूडेड होते हैं? नॉट इंक्लूडेड. नॉट इंक्लूडेड. एंड एम्प्लॉइज जिनके पास ESOPs है, देयर आर आल्सो व्हाट? नॉट इंक्लूड. और इसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए? ये सब कुछ कहां पे लिखा हुआ है? 40. मैं वही चेक कर रहा हूं कि सर आपने SR पास किया है नहीं, मार्केटिंग तो नहीं करी ना आपने. एंड दैट आई टोल्ड, डिड यू ऑफर इट टू 220 पीपल? कहता हाँ सर 220 पीपल. भाई प्रेफरेंशियल प्राइवेट प्लेसमेंट में मैक्सिमम. तो मैंने कहा सॉरी सर, इट इज नो लॉन्गर अ प्राइवेट प्लेसमेंट, इट बिकेम व्हाट? पब्लिक ऑफर, क्योंकि यू ब्रीच द लिमिट ऑफ व्हाट? 200. तो आई एम चेकिंग द कंप्लायंस ऑफ 42 एंड 62. फिर मैंने पूछा, इफ मनी नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज रेज्ड. मैंने बोला, मैंने आपने पैसा क्यों लिया? कहता सर वी नीडेड टू ओपन 2 फैक्ट्रीज. मैंने कहा डिड यू ओपन? कहता सॉरी सो फार वी हैव नॉट ओपन. इट मींस दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट डिफॉल्ट और नॉट? एंड व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 3, इफ नॉट यूटिलाइज, डिटेल्स एंड नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस. तुमने क्यों यूटिलाइज नहीं किया एंड हाउ मच इज नॉट यूटिलाइज एंड what is the nature of the non-compliance? These 3 questions in case of these 3 areas and these 3 questions in case of these 2 areas. मेरे को ये बताओ, क्लॉज नंबर 10 क्या था? इसका अच्छा क्लॉज नंबर 9 में अपना कॉन्सेंट्रेशन क्या था? रीपेमेंट के ऊपर, कि अपना जितने भी लोन लिए सबको क्या करो? रीपे करो. 10 में अपना कॉन्सेंट्रेशन क्या है कि वट एवर द मनी यू हैव रेज्ड, वेयर डिड यू अप्लाई? तो फर्स्ट 2 था IPO एंड FPO. IPO एंड FPO के केस में माई 3 क्वेश्चंस, डिफॉल्ट, डिले, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन. एंड इफ यू हैव डन प्राइवेट प्लेसमेंट, preferential allotment, convertible debenture, my 3 questions. What are my 3 questions? Compliance of 42 and 62. Why did not you utilize it for the purpose for which it was raised? And tell me the details and nature of what? Non-compliance. As simple as that. तो अब मेरे को बताओ, ये easy clause है? सर मैं गारंटी देता हूं, तुम ICA के मटेरियल से पढ़ के देख लो
या किसी भी मटेरियल से पढ़ के देख लो, आपको इससे सिंप्लीफाइड वे में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। डिड यू गेट द पॉइंट? तो टोटल हमने 21 क्लॉजेस में से हाउ मेनी वी आर डन विद? 10 to 1। एप्लीकेशन, रीपेमेंट, unrecorded income, statutory dues, deposits, cost records, non-compliance of 185, 186, loan to related parties, inventory, PPE। नीचे आ जाओ, PPE, inventory, loan to related parties, 185, 186, then deposits, cost records, statutory dues, unrecorded income, repayment of borrowings and application of funds। अब आया तुम्हारा क्लॉज नंबर 11 which you already know। What is the name of the clause? Fraud reporting। What is the name? अच्छा ये बताओ, तुमने ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर कर लिया लॉ में, उसमें मेरे ख्याल से सर ने आपको बताया होगा सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 कि अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो अपने को ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना है विद इन 2 days, और अगर मोर देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है तो अपने को 45 डेज वेट करना है टू गेट देयर रिप्लाई, 15 डेज में रिपोर्ट रेडी करना है, एंड ADT 4 में वी हैव टू रिपोर्ट इट टू होम? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन टोटल 60 डेज। सेम वही क्लॉज है, तो इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये मैं तुम्हारे साथ, डोंट वरी, आई विल डिस्कस दिस क्लॉज विद यू, but I will discuss this clause and section number 143 subsection 12 when we'll start with the which topic everyone? Company। वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पे you just have to remember the 3 questions। What are the 3 questions? Whether any fraud noticed happened on the company or by them। अच्छा, इसका मतलब बताएगा कोई? मैं सिंपली कंपनी को ये बोल रहा हूं, मैंने कहा ड्यूरिंग द ईयर डिड यू नोटिस एनी काइंड ऑफ व्हाट? फ्रॉड which is happened on the company। तुम्हारे ऊपर किसी ने फ्रॉड किया है, or you have done any fraud, obviously which answer they will give? On the company। They will never give the answer of what? By the way। So what is my question number 1? Whether any fraud has been noticed or happened either on the company or by। फिर मैंने बोला कि सर when you got that fraud, did you report that fraud to central government under section 143 subsection 12 in the format of form number ADT 4। फिर मेरा थर्ड क्वेश्चन था, अच्छा ये बताओ विसल ब्लोअर पॉलिसी मालूम है किसी को? एनीबडी हैज क्या होती है विसल ब्लोअर पॉलिसी? सीटी पे जाना। व्हाट डू यू मीन बाय विसल ब्लोअर पॉलिसी? आइडिया है तो बोलो। इफ समबडी इज हैविंग एन आइडिया प्लीज लेट मी नो। व्हाट डू यू मीन बाय विसल ब्लोअर पॉलिसी? देखो बहुत सिंपल सी पॉलिसी होती है। ये पॉलिसी इंडिया में शुरू करी थी टाटा प्राइवेट लिमिटेड ने, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड में शुरू हुआ था। विसल ब्लोअर का मतलब क्या होता है कि सपोज आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ वन कंपनी एंड इन फ्रंट ऑफ मी माय सीनियर इज डूइंग अ फ्रॉड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नाउ आई हैव अ फियर कि इफ आई विल रिपोर्ट दिस टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट अबाउट माय सीनियर, आई मे एंड अप लूजिंग माय जॉब, बट द सीनियर विल मेक श्योर दैट आई विल नॉट बी having any job anymore। Am I correct? So what should I do? So I will keep my mouth shut। This is what used to happen before whistleblower policy was made mandatory in India। अभी whistleblower policy क्या बोलती है कि ये जो employee है, the one who wants to make a complaint, he should not go to anyone, he should directly go to the chairperson of audit committee। Chairperson of which committee? To that person he should report कि there is one senior who is doing a fraud, and that chairperson of the audit committee will keep his identity and his employee ID completely secret information। Which one? Until and unless the action is not been taken, his identity will not be disclosed। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो। अब बताओ, if you are a ethical employee, देखो क्या होता है, sometimes I think that this might be looking filmy to you, but sometimes employees are very much passionate towards their company। They do not want to see any person bringing the harm to their company। वो जो employees होते हैं ना, वो ethical employees होते हैं। And not only that, you bring the notice to me any fraud is happening, then I will reward you also। तो अगर आपको reward मिल रहा है to bring it to the notice of the company if any fraud is happening, would you like to bring it or you would like to keep it with you? Bring it। और सबसे बड़ी बात है, यू विल बी रिवॉर्डेड विद द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, सब मिलेगा।
and at the same point of time recognition as well. Are you getting the point? But you should not be involved in it, obviously. Am I correct or not? तो ये पॉलिसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ऐसे विसल ब्लोअर पॉलिसी क्यों बोलते हैं? It is all happening secretly. All happening what? You just have to blow the whistle and the company will take the necessary action. अब वो, this is the point which has been recently added in our this clause. That's the reason what is written change. ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है? Whether any whistleblower's complaint has been received by the company during the year. तो मेरे 3 क्वेश्चन थे फ्रॉड को लेके. मैंने पहला पूछा सर आपने कोई फ्रॉड नोटिस किया या नहीं किया, आइदर ऑन द कंपनी और अगर हुआ तो डिड यू रिपोर्ट इट टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 60 days इन सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 12 इन फॉर्म नंबर ADT 4, और डू यू हैव अ विसल ब्लोअर पॉलिसी? इफ यस, डिड यू रिसीव एनी whistleblowers complaint during the year or not? With that our how many clauses are over? 11 clauses are over. यहां तक समझ में आए clauses? चलो क्लॉज नंबर 12 किसके बारे में है? अपनी निधि कंपनी जो होती है ना उसके बारे में. अब ये क्लॉज ऑब्वियसली इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल टू विच कंपनी? निधि कंपनी. इन द नॉर्मल कंपनी इन फ्रंट ऑफ दिस क्लॉज यू मे राइट NA. व्हाट इज NA? नॉट एप्लीकेबल. बट अगर आप निधि कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अब सुनना ध्यान से, रीड द पॉइंट नंबर 1. निधि कंपनी शेल एक्सेप्ट डिपॉजिट नॉट मोर देन 20 टाइम्स ऑफ इट्स ओन डिपॉजिट. अगर मैं एक निधि कंपनी हूं तो ऑडिटर क्या चेक करेगा मेरे में? कि ऑडिटर मेरी नेटवर्थ चेक करेगा. क्या चेक करेगा? वो है 100 करोड़. कितना? इसका 20 टाइम्स क्या हुआ? 2000 crore is the maximum deposits I can accept from the public. So it means your own fund to outside deposit ratio shall not be more than 1:20. आप अपने own funds का 20 times तक deposit you can accept as a which company? निधि कंपनी. तो अब मान लो मैं निधि कंपनी हूं, 60 crores is my net worth. How many public deposits I can accept? 60 crores का 20 times 1200 crores. That is the maximum deposit. Who has to check that? Audit. It should not be 1200 crores 1 rupee. Exactly, it should not be more than 1200 crores. Clear है? तो own funds to deposit ratio shall not be more than 1:20. That is the first thing I am checking in the which company? निधि कंपनी. अच्छा ये बताओ, जब आप किसी से डिपॉजिट्स लेते हो, obviously there is a lock-in period. What do you mean by lock-in period? There's a lock-in period of how many months? 3 साल तक आप अपना पैसा वापस नहीं ले सकते. You are given a deposit to me, you are not allowed to demand your what? Money. But tell me one thing, after 2 years I got some medical emergency, will I wait for 1 year? Now some people will go to the Nidhi company. Sir, I got the medical emergency, please repay my money. उस टाइम पे निधि कंपनी के पास should have liquid funds to repay or should not have? So auditor is checking the second thing. What is the second thing? Out of your total assets, out of your what? At least 10% of that should be liquid assets. Which assets? तुम्हारे पास at any point of time 10% liquid asset होने. मान लो I am a निधि company and my total balance sheet is 700 crores. What is my total of the balance sheet? मतलब asset side is how much? Into 10%. How much everyone? Should be my which assets? Liquid assets. What do you mean by liquid assets? Which are in cash or easily convertible into cash. Sir, ये क्यों requirement है? What if any deposit holder will come and call the money in an emergency manner? At that point of time, I should have the enough money to meet his what? Expectations. Clear? And this is again one more point. What is this? Change. तो अब तुमने देखा पूरा कारो 2020 में मोस्टली एवरी क्लॉज में क्या है? चेंज. And 7 clauses have been added. उसमें से 1 clause we have already done. That is called what? Unrecord. 16 के बाद जो 5 clauses है ना, they all are new. But between 12 to 16 there is one more clause which is new. That I will tell you. But remember where the changes have come and what are the new clauses. अभी change क्या आया? मतलब these 2 clauses were already there under 2016 कारो में. What is the change came? See this. Whether there is any default in the repayment of what? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट. क्या तुमने रीपेमेंट में कोई डिफॉल्ट किया या इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया? आई नीड टू नो दैट इंफॉर्मेशन. तो माई सिंपल 3 क्वेश्चंस कि भैया योर ओन फंड्स
to deposit ratio shall not be more than 1:20. What does that mean? As a Nidhi company, you can't accept more than 20 times of your own net worth as a what? Deposits. Point number 2, at any point of time, you should have 10% of your total assets as a which assets? Liquid asset. और अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है in the repayment or if you are defaulted in interest, give me the details. So with that, how many clauses are over? 12 clauses are over. अब मेरे को ये बताओ, up to 12 clauses कोई डाउट? क्विक रिवीजन करेंगे. आई डोंट वॉन्ट यू टू ट्रबल विद द मोर क्लॉजेस. तो ये अपना टॉपिक कल वाइंड अप हो जाएगा. ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ 1 to 12 सीक्वेंस में, 12 to 1 अबव में, फिर इनसाइड दैट वी विल ऑल्सो रिवाइज सो दैट इट विल बिकम परमानेंट इन योर हेड. यू नीड नॉट रिवाइज इट अगेन. तो कल अपन इसको रिवाइज नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम क्लॉज नंबर 13 टू क्लॉज नंबर 21, द रिमेनिंग 9 क्लॉजेस. अब मेरे को बताओ क्लॉज नंबर 12 क्या है? उसमें मेरे कितने क्वेश्चंस? व्हाट आर माय 3 क्वेश्चंस? 1:20, सेकंड 10% लिक्विड एसेट, थर्ड एनी डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट एंड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट. ओवर. माय क्लॉज नंबर 11, फ्रॉड रिपोर्टिंग. कौन सा? उसमें मेरे 3 क्वेश्चन. मैंने क्वेश्चन पूछा, डिड यू नोटिस एनी काइंड ऑफ फ्रॉड हैपेंड ऑन द कंपनी? बाय द वे, if noticed, did you report it to central government under section 143 subsection 12 in form number ADT 4? फिर मैंने पूछा, do you have a whistleblower policy and did you receive any whistleblower complaint? Crystal clear. फिर हम पूछे clause number 10 पे, application of fund. मेरे कितने questions? क्या questions है? अगर आपने IPO या FPO से पैसा रेज किया है, was there any default? Was there any delay? Was there any subsequent रेक्टिफिकेशन? लेकिन अगर आपने पीपीएस से किया, प्राइवेट प्लेसमेंट से किया, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से किया, कन्वर्टेबल डिबेंचर से किया, तो डिड यू कंप्लाई विद सेक्शन नंबर 42 एंड 62? डिड यू मेक एनी डिफॉल्ट? इफ डिफॉल्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस? फिर हम पहुंचे क्लॉज नंबर 9 में, रीपेमेंट ऑफ व्हाट? बोरिंग्स. रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स में मेरे कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, did you do any default? If yes, lender wise details. Question number 2, are you a willful defaulter? Question number 3, did you use the money for any other purpose? 4th, did you use any short term money for long term? Point number 5, did you take any loan to repay the obligations of your subsidiary, associate, joint venture? Point number 6, did you take any loan by pledging the securities of your associate, subsidiary, joint venture? Clause number 8, new clause, unrecorded income. 2 questions. Was there any unrecorded income they detected during your income tax assessment under the Income Tax Act 1961? If so, did you record that in your books of account? Crystal clear है. फिर अपन क्लॉज नंबर 7 पे पहुंचे. टैक्स को, डिस्प्यूट्स को अपना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, अनडिस्प्यूटेड टैक्सेस, डिस्प्यूटेड टैक्सेस. अनडिस्प्यूटेड में क्वेश्चन नंबर 1, डिड यू पे योर अनडिस्प्यूटेड टैक्सेस ऑन टाइम and are there any areas for more than 6 months? Disputed में how much dispute is going on and in which tribunal the dispute is going on. फिर हम लोग पहुंचे किसके ऊपर? Cost record. मेरा एक ही क्वेश्चन है, are you maintaining the cost records as per CRA 1 because you are a manufacturing company? तो can I say that this clause is also specific clause? ये कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल होगा? मैन्युफैक्चरिंग. जिनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है? कॉस्ट ऑडिट सेक्शन नंबर 148. फिर मैं पहुंचा 5th क्लॉज पे. 5th क्लॉज पे डिपॉजिट के केस में मेरे 3-4 क्वेश्चन थे कि आपने पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करे? बोल रहा हाँ. आपने सेक्शन 73 to 76 किया? बोल रहा हाँ. मैंने कहा आपने आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही? बोल रहा हाँ. मैंने कहा आपको कोई एनसीएलटी का ऑर्डर है? कहता नहीं. सिंपल. फिर मैं पहुंचा 4th पे, कंप्लायंस ऑफ 185, 180. वो मैंने तुम्हें बोला कि वेट फॉर द सीए फाइनल, वहां पे जाके पढ़ लेना. 185 बेसिकली इज अ लोन टू डायरेक्टर एंड 186 इज द इंटर. देखो ऐसा नहीं है आई कांट टेल यू, आई कैन टेल यू. मेरे को पूरे लॉ के 470 सेक्शन आते हैं, 29 चैप्टर्स आते हैं, 7 शेड्यूल्स आते हैं टिप पे. बट प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज नॉट द राइट टाइम. यू शुड नो दैट एवरीथिंग हैज टू बी डन ऑन टाइम ओनली. तो ये फाइनल में तुम्हें जाके समझ में आएगा. यहाँ पे तुम्हें सिर्फ 185, 186 याद करना है. लुक एट द क्लॉज नंबर 3, रिलेटेड पार्ट. रिलेटेड पार्टी में मेरे 6 क्वेश्चन. तुमने लोन किसको दिया, कितना रिलेटेड को, कितना अनरिलेटेड. फिर टर्म्स एंड कंडीशंस रेगुलर. तुम्हें रीपेमेंट और इंटरेस्ट रेगुलरली आ रहे हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट.
overdue more than 90 days, did you take any remedial actions? फिर मैंने पूछा कि any loans you have renewed, fresh or extension, or any other loans which are repayable on demand or for which payment terms have not been decided, उसका percentage कितना, उसका amount of loan कितना है. फिर मैं इन्वेंट्री पे पहुंचा. इन्वेंट्री पे मैंने बोला कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है रेगुलर टाइम पे, बोल रहे हाँ. मैंने कहा अपना प्रोसीजर बताओ, कवरेज बताओ, अगर डिस्क्रिपेंसी मोर देन 10% है, डिड यू रिकॉर्ड दैट इन व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट. फिर मैं गया राइट साइड पे, मैंने कहा आपने कोई वर्किंग कैपिटल लोन लिया, कहता हाँ. मैंने कहा कितना, मोर देन 5 crore सॉरी. तो मैंने बोला कि आपने सिक्योरिटी क्या दिया, बोला इन्वेंट्री. मैंने कहा इफ यू हैव गिवन द इन्वेंट्री एज अ सिक्योरिटी, यू हैव टू मेक श्योर दैट क्वार्टरली रिटर्न्स टू बी फाइल्ड विद दैट बैंक एंड मेक श्योर दैट इफ देयर इज एनी डिफॉल्ट. पॉइंट था, क्या था पॉइंट? हाँ, वेदर यू हैव एडजस्टेड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. फिर मैं गया क्लॉज नंबर 1 पे, P1 पे. मेरे 5 क्वेश्चन है. पॉइंट नंबर 1 रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स में लोकेशन, क्वांटिटी, इंटेंजिबल्स का डिटेल. सेकंड क्या था, टाइटल. भाई ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे क्यों नहीं है, व्हाई इट इज नॉट इन योर नेम, इन हुज नेम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग. फिर मैंने पूछा इज देयर एनी पेंडिंग लिटिगेशन अगेंस्ट यू फॉर द बिनामी प्रॉपर्टी, राइट और नॉट. फिर मैंने पूछा कि आर यू डूइंग द फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स और नॉट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई आस्क्ड रीवैल्यूएशन. इफ द रीवैल्यूएशन इज मोर देन 10%, शो मी द रीवैल्यूएशन रिपोर्ट. And did you disclose that in the books of accounts and financial statements or not? Revision हो गया. Clause number 1 to 12 totally permanent in your head now. ठीक है, remaining अपन कल करेंगे. ठीक है. So that brings an end for the session of today. क्योंकि ये न्यू टॉपिक है इसलिए अपने को टाइम ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आई कांट टेक द रिस्क, क्योंकि व्हेन यू नो दैट इट हैज टू कम, इट हैज टू बी डन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. ठीक है. तो क्लॉज नंबर 13 to 21 अपन कल करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच. और इसके बाद अपने को कंपनी ऑडिट चैप्टर स्टार्ट करना है सर. सेक्शन नंबर 138 से 148 सेक्शन, विच इज सेम लाइक योर ऑडिट एंड ऑडिटर्स. थैंक यू सो मच.